آج پرمسرت اور مبارک سبت کا دن ہے۔ اس وقت آئیے ہم خدا کے کلام کی شراکت عنوان جو بادشاہ بننا چاہتا ہے وہ ضرور اس کے تاج کا وزن برداشت کرے کے تحت کرتے ہیں۔ عنوان تھوڑا سا لمبا ہے۔ وہ جو بادشاہ بننا چاہتا ہے اسے ضرور اس کے تاج کا وزن برداشت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ جو آسمان کی بادشاہ میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے صلیب کا بوجھ برداشت کرنا چاہیے۔ وہ جو تاج کا وزن برداشت کر سکتا ہے وہی بادشاہ بننے کے قابل ہے۔ کیا آپ ایسا نہیں سوچتے؟ یہ کم از کم قابلیت ہے۔ اسی طرح سے جو کوئی آسمان میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے اپنی صلیب کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ کتنا اچھا ہوتا اگر آسمان کی بادشاہی کی راہ آسان اور ہموار ہوتی، لیکن یہ راہ جس پر ہم چل رہے ہیں کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتی۔ یسوع نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا اٹھائے؟ اپنی صلیب اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کے اٹھانے کے لیے اپنی صلیب ہے۔ آج اس دنیا میں 7.7 ارب لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس اٹھانے کے لیے کوئی صلیب نہیں ہے۔ لوگ اپنے پرامن ظہور یا مستقبل کے لیے امید کے ساتھ محض اسے چھپا لیتے ہیں، اس لیے دوسرے اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ حقیقت میں ہر ایک کی اپنی صلیب ہوتی ہے، اس لیے وہ جو آسمان پر جانا چاہتے ہیں انہیں صلیب کا بوجھ برداشت کرنا چاہیے، اور وہ جو آسمان کے شاہی کائنوں کا فرقہ بننا چاہتے ہیں انہیں تاج کا بوجھ برداشت کرنا چاہیے۔ 2000 سال پہلے ابتدائی کلیسیا کے مقدسین ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے آسان زندگی نہیں گزار سکے تھے، تاہم اس کی ایک وجہ تھی کہ خدا نے انہیں مشکلات سے بھری ایک زندگی گزارنے کو دی۔ ہر چیز کی اپنی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ایک سال کے 365 دنوں میں لوگ ہمیشہ دھوپ والے اور خوشگوار دن چاہتے ہیں، تاہم اگر صرف دھوپ والے دن ہی ہوں تو کیا ہو؟ ایسا علاقہ بھی موجود ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ صحرائے عرب ہے۔ صحرا میں سال کے 365 دنوں میں ہمیشہ دھوپ رہتی ہے، اس لیے وہاں کیا چیز کافی نہیں ہوتی؟ پانی۔ چونکہ وہاں کافی مقدار میں پانی نہیں ہوتا پودے نہیں اگ سکتے۔ چونکہ پودے نہیں اگ سکتے جانور ان پر بسیرا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس بنجر اور ویران ماحول میں لوگ بھی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے خدا ہمیں بعض اوقات برے موسم جیسے کہ بارش اور گرج چمک دیتے ہیں۔ اگر گرج چمک نہ ہوتی تو پودے بڑے خطرے میں پڑ جاتے، اس زمین پر ان کی افزائش نہ ہو پاتی۔ گرج چمک سے خدا پودوں کو نائٹروجن مہیا کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ قدرت کے اصول سیکھتے ہیں اتنی زیادہ ہر چیز انوکھی نظر آتی ہے۔ کوئی بھی چیز بغیر کسی وجہ کے نہیں بنائی گئی۔ شاید ہم یہ سوچیں کہ کیوں خدا نے گرج اور چمک کو بہت اونچا اور شور کرنے والا بنایا ہے؟ کیوں انہوں نے ایسی چیزیں بنائیں جو سوتے ہوئے بچوں کو جگاتی اور لوگوں کو ڈراتی ہیں؟ ہمیشہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں بادشاہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے تاج کا وزن برداشت کرنا چاہیے۔ میں خلوص دل سے آپ سب آسمانی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ صلیب کے بوجھ کو برداشت کریں جو آپ کو دیا گیا ہے، اور مسیح کی راہ پر وفاداری سے چلیں تاکہ آپ ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ آئیے لوکا کی انجیل باب 9 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لوکا کی انجیل 9 باب 23 آیت۔ اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اگر کوئی مسیح کی زندگی کے مشابہ ہونا اور ان کی راہ پر چلنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کیا اب ہم ہر روز ایک ایسی زندگی نہیں گزار رہے جو کہ مسیح کی زندگی کی پیروی کرتی ہے؟
ताहम हमारे रास्ते में चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। ताहम ये यकीनी है कि ये राह हमारी रहनुमाई एक अच्छे नतीजा की जानिब करती है। बाजुकात इस मरहला के दौरान सख्त बाड़ें, रुकावटें और बहुत सी मुश्किलात आती हैं और हमें अक्सर ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जिनसे हम अलग रहना चाहते हैं। जब हम एक सुरंग में दाखिल होते हैं तो पहले ये तारीख होती है, लेकिन आखिरकार सुरंग के इख्तिताम पर हम एक दरख्शां रोशनी देख सकते हैं। इसी तरह कई बार मुश्किलात होती हैं जिनको सलीब कहा जाना चाहिए, जो कि हमारे सामने होती हैं, लेकिन आखिर में अब्दी आसमान की बादशाही हमारे वास्ते रखी गई है। हमें हमेशा इसे याद रखना चाहिए। बहुत दफा यीशु ने तालीम दी कि सिर्फ वो जो अपनी सलीब उठाए हुए उनकी पैरवी करते हैं आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। आइए दूसरा तिमोथियस 3 बाब देखते हैं। आयत 12 कहती है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। जब हम खुदा में ईमान से दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस दुनिया के सब निजाम हमें महज अकेले नहीं छोड़ देते, बल्कि ये दुनिया इस तरह तरतीब दी गई है कि उन लोगों को मुश्किलात, अजियतों, आजमाइशों और मुसीबतों में मुब्तला करे जो दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मसीह की पैरवी करते हुए शायद हम इस सोच से सलीब उतारने की कोशिश करें कि अगर सिर्फ ये मुसीबत ना हो तो बहुत अच्छा होगा। पौलुस रसूल ने भी कई बार खुदा से कहा कि उसके जिस्म में चबोया गया कांटा यानी शैतान का कासिद, जो कि एक बीमारी थी, दूर हो जाए। लेकिन खुदा ने हमेशा उसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। उस लम्हा पर पौलुस रसूल ये नहीं समझा था कि क्यों ऐसी चीजें उसके साथ वाकया हो रही थीं। गो वो उन सब वजूहात को समझ गया होगा जब वो आसमान की बादशाही में गया होगा। खुदा मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि हत्ता कि उन्होंने मुझे ये दिक्कत पहुंचाई। असल में ये दिक्कत नहीं थी, बल्कि गलत रास्ते पर जाने से मुझे रोकने के लिए एक रुकावट थी। हम अक्सर सोचते हैं कि सलीब एक मुसीबत, दर्द और बोझ है, लेकिन असल में सलीब किसी भी तरह से कोई बोझ नहीं कि हमें अजियत दे। सलीब हमारी निजात के लिए निहायत जरूरी है। हमें ये अपने जहन में रखना चाहिए। इब्तदाई कलीसिया के दिनों में यीशु इस जमीन पर हम जैसे एक इंसान के तौर पर आए थे। चूंकि वो जिस्म में आए थे और खुशखबरी की मुनादी की थी, मजहबी रहनुमाओं और लोगों ने जिनका ताल्लुक उस जमाने के बालदस्त मजहब से था, जो कि यहूदी थे, शिद्दत के साथ उन्हें अजियत दी। उन्होंने उनकी हर एक तालीम की मुखालफत की और बिला झिझक उन पर इल्जाम लगाए। एक दिन यीशु ने गवाही दी कि वो खुदा हैं जो आसमान से आए हैं। हम इसे यूहन्ना 10 बाब 30 आयत में देख सकते हैं। मैं मसीहा हूँ जिसका तुम इंतजार करते रहे हो। मैं वही खुदा यानी निजात दहिंदा हूँ जिसका तुम इंतजार करते रहे हो। जब उन्होंने इस सच्चाई को बयान किया तो यहूदियों ने उन्हें संसार करने के लिए पत्थर उठा लिए। ये उनके इस गलत नजरिए की वजह से था कि खुदा आदमी के तौर पर ऐसे अदना ज़हूर में नहीं आएंगे। उनका एतकाद गलत था। उनके मुकर्रर करदा ख्याल के बरक्स यीशु जमीन पर जिस्म में आए और अपनी खिदमत का काम 3.5 साल तक अंजाम दिया। बनी नूह इंसान के लिए निजात का रास्ता वसी तौर पर खोलने के बाद वो आसमान पर उठाए गए। सब लोग जो यीशु मसीह पर बतौर खुदा यकीन रखते और उनकी पैरवी करते रहे, उन सब पर उस जमाने के मजहबी रहनुमाओं और लोगों के जरिए बिदती होने के छाप लगाई गई। जैसे कि ये अमाल 24 बाब में लिखा है,
पौलुस रसूल पर अदालतों में इल्जाम लगाया गया और हत्ता के नासरियों के बिदती फिरका का सरगरोह पुकारा गया। ऐसा लगता था कि ऐसी अजियतें और परेशानियां खुशखबरी में मुदाखलत का सबब बनेंगी, लेकिन कुछ हैरत अंगेज रूनुमा हुआ। जितना ज्यादा उनको रोका गया, उतनी ज्यादा खुशखबरी फैली। ये मुर्ग की खुशबू की मानिंद था। जितना ज्यादा इसके टुकड़े टुकड़े किए गए, उतना ज्यादा उसकी खुशबू तेज होती गई। जब इसे आधा आधा टुकड़े किया गया, तो रूह कुद्स की ताकत का इजाफा आधा हिस्सा और हो गई। जब इसके और ज्यादा टुकड़े किए गए, तो रूह कुद्स की बरकत ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होती गई, ताकि इब्तदाई कलीसिया को मुस्तहकम बनाए और खुशखबरी को न सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप में भी फैलाए। जब सलीब की बात हो, तो हम शायद इसे महज दुखों, आजमाइशों और मुसीबतों की इलामत समझें। हकीकत में सलीब से बालातर इसमें खुदा की एक पोशीदा मर्जी है। जब हम मुकाशवा 22 बाब 1 से 6 आयत पढ़ें, तो हम देख सकते हैं कि वो लोग जिन्हें ये वादा बख्शा गया कि अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे, ये वो हैं जो यहाँ मौजूद हैं। सही। आइए इसकी तस्दीक करते हैं। मुकाशवा 22 बाब 1 आयत कहती है, फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बरा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पर जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। 3 आयत, और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बरा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। यहाँ वो से मुराद हम हैं, जिन्हें बचाए जाना है। चूंकि ये लिखा है, वो आसमान में अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। अगर हम बादशाह हों, तो क्या हमें अपने सरों पर ताज पहनना नहीं चाहिए? तो फिर हमें इसे पहनने के लिए ताज का बोझ सहना चाहिए। हम ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकते कि ऐसा क्यों है कि खुदा सलीब का बोझ हम पर रखते हैं। खुदा अपने लोगों के लिए ना हमवार रास्तों को हमवार और मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। वो हमारी मदद कर सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचें, ख्वाहिश करें या आरजू रखें, उसे हासिल कर सकें। ताहम खुदा दबाव और मुख्तलिफ किस्म की अजियतों के जरिए खुशखबरी को बढ़ने वाला बनाते हैं। हमें एहतियात से इसके बारे में सोचने की जरूरत है। खुदा हमसे कहते हैं कि आखिरकार तुम अब्दुल आबाद बादशाही करोगे। वो हमें आसमान पर जलाली रुतबे पर फाइज करना चाहते हैं, जहां हम उनके साथ मिलकर अब्दुल आबाद जिंदगी बसर कर सकते हैं। इसलिए हमें इस जमीन पर बहुत ज्यादा रूहानी तरबियत की जरूरत है। बाज़-औक़ात हम दुख, गम, अजाब और सख्तियों से गुजरते हैं। ताहम खुदा हमें सिर्फ दुख ही नहीं देते हैं, बल्कि इसके साथ साथ सुख भी देते हैं। सही। वो हमें उम्मीद भी देते हैं। क्या वो नहीं देते? हम इस हकीकत से तसल्ली पाते हैं कि हमारे पास आसमान का वादा है। सही। अगर ऐसा ना होता कि हमें बादशाह बनना होता, बल्कि महज फरिश्ते जो आसमान में सिर्फ बादशाहों की पैरवी करेंगे, तो खुदा हमें कभी भी दर्द, दुख, सख्तियां और आजमाइशें ना देते। जब हम ज्यादा से ज्यादा दुख उठाते हैं, तो हम बड़े ज़रूफ बनते हैं। आइए इस हकीकत को जहन में रखें और खुद को मुकम्मल तौर पर और मुस्तैदी से मसीह की जिंदगी यानी सलीब की राह पर गामजन करें। आइए रोमियो 8 बाब पर चलते हैं। 8 बाब 16 आयत। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं।
बादशाह के ताज का एक मखसूस वजन होता है। हमें ताज का वजन बर्दाश्त करने के काबिल होना चाहिए। किताब मुकद्दस कहती है कि हम अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। सिर्फ यीशु की पहली आमद पर ही दुख नहीं थे, बल्कि इन आखिरी दिनों में भी हैं जिनमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। ये गौर करते हुए कि हमारा सयून कैसे बना है जैसा कि ये आज है, मरहला हमेशा आसान नहीं रहा है। आसमानी बाप ने लातदाद मुश्किलात से गुजरते हुए खुशखबरी के काम की क़यादत की है, और आसमानी माँ ने नाकाबिले शुमार दुखों में से गुजरते हुए हमारे लिए काम किया है, ताकि इस सच्चाई की मुनादी सामरिया और हत्ता के ज़मीन की इंतहा तक करें, ताकि सब लोग इस सच्चाई को जान सकें। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ताकि हमें ऐसा बनाएं जैसे हम आज हैं। हम सब सयून के लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि जो बादशाह बनना चाहता है उसे ज़रूर इसके ताज का वजन बर्दाश्त करना चाहिए। रोमियो 8 बाब कहता है कि चूंकि हम आसमान के वारिस यानी मसीह के हम मेरास हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके दुखों में शरीक होना चाहिए ताकि हम उनके साथ जलाल भी पाएं। तो फिर उन लोगों को कौन सी सच्चाई में जिंदगी गुजारनी चाहिए जिन्हें किताब मुकद्दस खुदा के वारिसों के तौर पर तस्लीम करती है? आए इब्रानियों 9 बाब पर चलते हैं। इब्रानियों 9 बाब 15 आयत बयान करती है, और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मेरास को हासिल करें। यहाँ हमने वादा के मुताबिक अब्दी मेरास हासिल की है क्योंकि हम खुदा के वारिस हैं, जैसे कि रोमियो 8 बाब में लिखा है। किताब मुकद्दस कहती है बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मेरास को हासिल करेंगे। उन लोगों ने कौन सा वादा हासिल किया है जो नए अहद में बुलाए गए हैं? खुदा ने उन्हें अब्दी मेरास देने का वादा किया है, यानी आसमान की बादशाही के मेरास। रोमियो 8 बाब में उन्हें खुदा के वारिसों के तौर पर बयान किया गया है। दुनिया में साहिल समुंदर की रेत की मानद लातदाद कलीसियाएं हैं, लेकिन रोमियो 8 बाब उन सब का हवाला नहीं देता। ये सिर्फ खुदा के लोगों का हवाला देता है। वो कौन सी सच्चाई में बसते हैं? वो नए अहद की सच्चाई में सुकूनत करते हैं। इसलिए किताब मुकद्दस कहती है कि मसीह नए अहद का दरमियानी है। जो कोई नए अहद में नहीं बसता अब्दी विरासत में शरीक नहीं हो सकता, जिसका वादा खुदा ने हमारे साथ किया है। सिर्फ वो जो नए अहद में हैं इसे हासिल कर सकते हैं। ये वो हैं जो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे, जैसे कि हमने अभी मुकाशवा 22 बाब में देखा था। इस जलाल में शरीक होने के लिए जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है, हमें जलाल के ताज के वजन को बर्दाश्त करना चाहिए। इसीलिए ये वो राह नहीं जिस पर हर कोई चल सकता है। किताब मुकद्दस कहती है वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और क्या उसके पाने वाले थोड़े हैं। वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है। ये रास्ता दुनिया के सब लोग मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते हैं। सिर्फ वो जिनका ईमान खुदा की मर्जी की मुकम्मल तौर पर तामील करने के लिए दुरुस्त है, उस राह पर चल सकते हैं जिस पर आप चल रहे हैं, यानी वो राह जिस पर हम इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं। हमें बाप और माँ के साथ इकट्ठे अब तक नए अहद यानी सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। तो फिर खुदा ने हमें क्यों हमारी सलीबों का बोझ बर्दाश्त करने को दिया है? क्या खुदा हमें बगैर हमारी सलीबें उठाए आसान और हमवार राह पर चलने की इजाजत नहीं दे सकते थे? जवाब मुकाशवा 22 बाब में मिलता है, जिसे हमने अभी पढ़ा है। खुदा चाहते हैं कि हमारा सामना मुख्तलिफ माहौलियात से हो, ताकि हमें बादशाह बनाए जो अब्दुल्लाबाद बादशाही करें। इसलिए खुदा ने हमें खुशखबरी की मुनादी करने का हुक्म दिया है। सही। मुनादी के मरहला में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी मुख्तलिफ इम्तियाजी शख्सियात होती हैं। इसके साथ साथ हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं।
ہمیں مختلف تہذیبوں اور رواجوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کا تجربہ کرنے کے لیے منادی کے علاوہ کوئی دوسرا موقع نہیں ہے۔ ہم سب اقسام کے لوگوں سے ملتے ہیں، غیر ملنسار لوگوں سے، اچھے اخلاق والے لوگوں سے، ان لوگوں سے جو ہماری شخصیتوں سے ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور ان دوسروں سے جو ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ کیا ہم ان سے کچھ سیکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ کیوں خدا ہمیں تمام لوگوں کو خوشخبری کی منادی کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ خدا یہ سب کچھ ایک لمحہ میں اکیلے کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ہمارے سپرد کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اس رتبہ پر فائز کرنا چاہتے ہیں جس پر ہم عبدالآباد بادشاہی کر سکتے ہیں۔ صحیح؟ ایک ملک میں لوگ نرم مزاج اور خدا کے کلام کے فرمانبردار ہیں، دوسرے ملک میں لوگ ایسے نہیں ہیں، اور ایک اور ملک میں بھی لوگ ابھی تک ایک نیم گرم رویہ دکھاتے ہیں۔ ہم مختلف اقسام کے حالات میں ڈھل رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تمام اسباق میں سے ایک سبق ہے جو ہم سب مشترک طور پر سیکھتے ہیں۔ ہم سب میں ضرور محبت ہونی چاہیے جو خدا نے ہمیں دکھائی ہے، تاکہ ان سب کی توبہ اور نجات کی طرف رہنمائی کریں۔ اگر ہم خدا کی محبت کے ساتھ خوشخبری کی منادی کریں تو تمام دنیا میں ہم سب متحد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ذاتی شخصیت یا اپنے ذاتی خیالات کے ساتھ منادی کریں تو یہ مسلسل تکلیف اور مسائل پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم مسیح کی محبت کے ساتھ منادی کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہوئے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے متحد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے 175 ممالک میں ہمارے تمام سیون خدا میں ایک سماج بن گئے ہیں۔ سیون کا ہر کارکن خدا کی محبت میں خوشخبری کی منادی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ صحیح؟ ہر روز میں تمام دنیا میں سے پرمسرت خبریں سنتا ہوں کہ خوشخبری کی منادی بہت جلد کی جا رہی ہے۔ میں مسلسل شاندار خبریں سنتا ہوں کہ ایک مشہور اداکار نے بپتسمہ لے لیا ہے، اور کچھ فلم پروڈیوسرز نے سچائی کو قبول کر لیا ہے، اور کچھ سیاستدانوں نے بھی سچائی کو قبول کر لیا ہے۔ یوں طلبہ، نوجوان، بالغ خواتین، بالغ مردوں میں سے ہر طرح کے شعبوں سے اراکین سیون میں لائے جا رہے ہیں۔ جب ایسے مختلف قسم کے لوگ سیون آتے ہیں، میں ہمیشہ اس بارے میں سوچتا ہوں کہ مجھے ان سب کو ایک آسمانی خاندان میں متحد کرنے اور ان سب کی رہنمائی آسمان کی جانب درست راہ پر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے برداشت کرنے کے لیے اپنی سلیب ہوتی ہے۔ صحیح؟ جو کوئی اپنی سلیب نہیں اٹھاتا آسمان پر نہیں جا سکتا۔ ہم سب کے برداشت کرنے کے لیے اپنی اپنی سلیب ہے۔ اپنے کھوئے بھائیوں اور بہنوں کو ڈھونڈنے پر میں بہت خوش ہوں، لیکن آسمان کے لوگوں کے طور پر ان کے نئے سرے سے پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گرد اراکین کی قربانی کا حصہ بھی درکار ہوتا ہے۔ انہیں صلیب کا بوجھ برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یسوع کے مطابق وہ جو اپنی صلیبیں نہیں اٹھاتے آسمان کی بادشاہی میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا وہ میرے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ صلیب کے بغیر راہ کبھی بھی مسیح کی راہ نہیں ہے۔ خدا کی قدرت لا محدود ہے، اس کے باوجود وہ اس زمین پر آئے اور صلیب کا بوجھ اٹھایا۔ ہر قسم کے طریقوں سے تصحیح اور تحقیق کرواتے ہوئے انہیں کوڑے لگائے گئے اور صلیب پر کیل ٹھونکے گئے اور ان کی پسلی کو نیزے سے چھیدا گیا۔ کیوں وہ اس تکلیف دہ راہ پر چلے تھے؟ ان سب دکھوں کا تجربہ کیے بغیر وہ ہر چیز حاصل کر سکتے تھے۔ صحیح؟ تاہم وہ خاموشی سے صلیب کی راہ پر چلے اور کہا اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی صلیب اٹھانا ضروری ہے۔ میں صلیب کی راہ پر چلا ہوں، اس لیے صرف وہ جو اپنی صلیب اٹھاتے ہیں میری راہ کی پیروی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے خدا کی مرضی یہ ہے۔ صحیح؟ سیون میں ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں، آج آئیے ہم اس بارے میں سوچتے ہیں
कि क्यों खुदा हमें सलीब की राह पर चलने की इजाजत देते हैं। अगर हम इसके बारे में एहतियात से सोचें तो हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं। जो बादशाह बनना चाहता है वो जरूर उसके ताज का वजन बर्दाश्त करे। हम वो हैं जो अब्दुल अबाद बादशाही करेंगे, सही। बहुत सी मुख्तलिफ सूरत हाल में इस और उस हालत में डाले जाकर शायद हम इस और उसका तजर्बा करें और बहुत सी तहजीबों और लोगों का सामना करें। ताहम अगर हम सब मुत्तहिद रहें और मसीह की मोहब्बत के जरिए हम आंगी हासिल करें तो ये आसमान की जलाली दुनिया की मानद होगा, क्या ये नहीं होगा? आसमान पर जाने से पहले हमें इस जमीन पर ऐसी तब्दीलियों से गुजरना चाहिए। इसके लिए सलीब की राह हमें दी गई थी। हमें हरगिज सलीब के बोझ से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि आखिर तक बोझ को बर्दाश्त करना और मसीह की पैरवी करनी चाहिए। मसीह की पैरवी करने में सबसे अहम तरीन चीज मुनादी है। गो हम मुनादी ना करें, खुदा सब कुछ कर सकते हैं। अगर खुदा महज चंद सलाहियतें दिखाएं और चंद ऐसी चीजें दिखाएं जो लोगों को हैरान कर दें, वो लम्हा भर में हर एक को खुद पर एतकाद रखने वाला बना सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने ये खास काम हमें बख्शा है। हालांकि हम में कोई ताकत या हिकमत या कोई काबिलियत नहीं है और बहुत सी राहों में कम है। खुदा ने हमें ये खास काम सौंपा है ताकि हम उस राह पर चल सकें। एक बार पौलुस रसूल ने कहा था कि कुर्बानी और मेहनत जो उसने एक शख्स को मुनादी करने के दौरान की बिल्कुल वैसी है जैसे एक बच्चे को जन्ने की दर्द। उसने कहा यह दर्द बिल्कुल ऐसा है जैसा एक माँ के होता है जो एक बच्चे को जन्म देती है। खुदा ने हमें ऐसा बोझ क्यों दिया? हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। जवाब यह है कि जो बादशाह बनना चाहता है वो जरूर उसके ताज का वजन बर्दाश्त करे। ये अच्छा होता कि अगर किसी बादशाह को ताज ना पहनना पड़ता, लेकिन उसे जरूर ताज पहनना चाहिए। ताज के बगैर कोई बादशाह नहीं होता। हमें जरूर ताज का बोझ बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसा करते हुए हमें अब्दी हम और जलाल बाप और माँ के हजूर पेश करना चाहिए। हमें यकीनी तौर पर यह समझना चाहिए कि इसमें जरूर कोई खास मर्जी है जब खुदा ने हमें ये और वो करने को कहा है। हमें मुबहम तौर पर मुनादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये खास काम हमारे सुपुर्द किया गया है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए जो बादशाह हूंगा एक मौका है कि ताज के बोझ को बर्दाश्त करूं। मत्ती 28 बाब 18 आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये जाहिर करता है कि हमें हर जगह पर हर चीज का तजर्बा करना है और उनको बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। उन्हें हर बात की तालीम देना जिनकी तालीम यसु ने दी आसान नहीं है, और हर बात की फरमाबरदारी करना जिनकी तालीम यसु ने दी है आसान नहीं है। ज्यादातर लोग यसु की तालीमात की पैरवी नहीं करते हैं, अगरचे वो इसे जानते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग भी हैं जो नहीं जानते इसलिए पैरवी नहीं करते हैं। ताहम यसु ने कहा उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप बादशाह हैं तो आपका नुक्ता नजर तंग नहीं होना चाहिए और सिर्फ उसके बारे में ना सोचें जो आपके गिर्द है, बल्कि जरूर दुनिया की हर बात के बारे में जानना चाहिए। क्या चीज मेरे लोगों को ऐसा बना सकती है कि वो सुकून में रहें? मैं अपने लोगों की मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ? एक बादशाह को जरूर इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तब हमें बहुत से तजर्बात से गुजरने की जरूरत है। हमें तमाम उम्र के बहुत से लोगों से मिलने की जरूरत है। हमें गुनागुन तहजीबों में से गुजरने की जरूरत है और मुख्तलिफ इम्तियाजी शख्सियत के लोगों का सामना करने की जरूरत है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए खुदा ने हमें ऐसा निज़ाम और ऐसा काम क्यों करने को दिया है। मेरा ख्याल है कि मुनादी करना आसान नहीं है, ये महज हर कोई नहीं कर सकता है। इस तरह से सोचने के बजाय हमें जरूर वो सब कुछ करना चाहिए जो खुदा हमें करने को कहते हैं। आसमान की जानिब राह पर हर किसी को तजर्बे की जरूरत है, इसलिए खुदा ने कहा उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम में
बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ जो बादशाह बनना चाहता है, यानी जो आसमान में दाखिल होना चाहता है, उसे ताज का वजन बर्दाश्त करना जरूरी है। अगर हम सलीब का बोझ बर्दाश्त करें तो खुदा सय्योन के तमाम फर्जंदों को बरकत और अब्दी जिंदगी का ताज बख्शेंगे जो कभी मांद नहीं पड़ता। सही। अपने दिलों में इस उम्मीद के साथ आइए हम अपनी बेहतरीन कोशिश करें। उस दिन तक जब खुशखबरी की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक की जाए, आइए हम मुनादी करने की ज्यादा कोशिश, दुआ और खुदा के कलाम का मुताला करें ताकि हम बाप और माँ की पाक मर्जी को पूरा करें। आपको ऐसा करने के लिए कहते हुए मैं आज का वाज खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।